All right, so we are going to start now. So yesterday we implemented few of the basic things related to NumPy and Pandas, and also Matplotlib for data visualization. All right, so today we'll be implementing the algorithms of machine learning using Python. Okay. So I hope now you all are familiar with what is machine learning and all. In the last session, I guess you get to know what exactly machine learning, AI, all is. But now we are going to see everything practically using Python. We are going to implement that. So when we talk about machine learning, how many algorithms do we actually have and how we are going to implement them, or how to decide that which algorithm should be implemented in which situation? This is the most commonly asked problem from a lot of participants, like which algorithm should be applicable in what situation, how do we decide that? See, there are a lot of algorithms. Okay, on daily basis research are going on and a lot of scholars are like inventing new algorithms, but how do we decide that which algorithm is suitable for our problem? All right, so for that the thing is very simple. First of all, if we divide the data science into machine learning and deep learning, obviously there are two different kind of learnings we have. The first one we'll be talking about is the machine learning. And now machine learning is divided into three categories. One is a supervised learning, one is a unsupervised learning, and one is a reinforcement learning. And there is one more, that is semi supervised learning. Actually, I will say that reinforcement is not part of machine learning. It's a different kind of learning. There are three types of learning: machine learning, deep learning, and reinforcement learning. Now, inside machine learning, we have supervised, unsupervised, semi-supervised. Inside deep learning, we have the same thing. Okay. Reinforcement is little bit different from others. Reinforcement thoda alag hai as compared to machine learning and deep learning. In today's time, most of the applications are even using reinforcement learning. बहुत सारी एप्लीकेशन है जो reinforcement learning पे काम करते हैं. जैसे जितने भी रियल टाइम गेम्स हैं, जैसे AI बेस्ड चेस गेम है आपका, या किसी भी गेम के अंदर अगर आप AI देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजिंग reinforcement learning. ओके. उसके अलावा डीप लर्निंग अगेन मशीन लर्निंग से कहीं ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, बट वी हैव टू स्टार्ट विद मशीन लर्निंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, कि हाउ डू वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. तो जब हम जाते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, ये कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं? द डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑब्वियसली अवर टारगेट वेरिएबल, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव, डू वी हैव टारगेट वेरिएबल अवेलेबल और नॉट. सबसे पहले तो यही चेक करना है. उसके भी पहले इफ आई टॉक अबाउट लाइक हाउ डू वी एक्चुअली डिफाइन मशीन लर्निंग, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग को एग्जैक्टली. सी, if I say what is machine learning in simplest term, in layman terms, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अगर देखना शुरू करें मशीन लर्निंग क्या एग्जैक्टली समझाता है आपको. देखो, मशीन लर्निंग इज सिंपल कि अगर आपके पास एक एक्स है और एक वाई है, हम लोग स्कूल में मैथमेटिक्स में सीखते हैं ये वाली चीज, कि आपके पास एक एक्स है 1 2 3 4 5, और आपके पास एक वाई है लाइक दिस. नाउ इफ समवन आस्क मी कि अगर x 6 होगा, तो कोई पूछता है मेरे से बताओ y क्या होगा, फिर कैसे बताऊं? ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, मशीन लर्निंग की नहीं. मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई टर्म्स में चलते हैं, मैथ्स की टर्म्स में ही आंसर करने की कोशिश करें. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो ऐसा करने के लिए वी नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ. हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेना चाहिए कि एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज होता है. इफ आई ड्रॉ दिस सिंपल लाइन,
This is the x axis, this is the y axis. Now x is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y is 1, 2, 3, 4, 5, 6, something like this. ऑल राइट, तो एक ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाकर हम लोगों ने जो अवेलेबल है डेटा उस पर चलते हैं. अवेलेबल इज 1 2 3 4 5, इसका एवरेज भी निकाल कर रख लेंगे. बट ट्राई टू प्लॉट दी पॉइंट्स इन योर ग्राफ. हम 1 के कोरेस्पॉन्डिंग 2 को प्लॉट कर देते हैं, देन 2 के साथ 4, देन 3 के साथ 5, देन 4 के साथ 4, देन 5 के साथ 5. सो दिस इज व्हाट अवर ग्राफ लुक लाइक. ऐसा कुछ एक ग्राफ बनता है हमारे पास. आफ्टर प्लॉटिंग दिस, कि अगर हम लोगों को एक x एक्सिस y एक्सिस गिवन था, नाउ इन मैथ्स हाउ डू वी फाइंड अ रिलेशन between x and y? We check if it is a linear relation or not. हम चेक कर सकते हैं. और लीनियर रिलेशन निकालने के लिए इक्वेशन क्या होती है? mx plus c. This is the equation to find out the linear relation between x and y. होता है, याद है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को शायद अगर याद भी नहीं है तो देख लीजिए भाई, ये इक्वेशन थी. इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं एक्चुअली इसको. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. डीप लर्निंग का फॉर्मूला बस इतना होता है, y इक्वल्स टू mx. ठीक है, बस वहां m की जगह w बोलते हैं वेट्स के लिए, x तो वही है जो था. तो एक्चुअली वी आर एवरी टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन y एंड x. लेकिन ये m क्या है? व्हाट इज दिस m? नाउ इफ आई से कि m एक स्लोप है, बट लेकिन और थोड़ा मीनिंग समझते हैं इसका. व्हाट इज अ स्लोप? तो basically by slope we are telling that x को कितना चेंज करने से y कितना चेंज होता है, y कितना सेंसिटिव है x के साथ. तो अगर मेरा स्लोप कुछ ऐसा बन जाए, लेट्स से ये, और फिर मैं निकालना शुरू करूं कि x को चेंज करके y बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, या फिर मेरा स्लोप कुछ ऐसा निकल के आता है, तो इसका मतलब x को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो y कितना ज्यादा चेंज होगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो एट द एंड यू विल गेट अ सम सॉर्ट ऑफ स्लोप. आपको कोई ना कोई किसी तरह का एक स्लोप मिलने वाला है. आफ्टर पुटिंग एवरीथिंग इनटू दिस इक्वेशन यू विल गेट अ स्लोप. एंड लेट मी टेल यू, स्लोप कहां से होकर निकल कर जाता है वो पॉइंट भी हमें पता है. आप एवरेज निकालोगे x का, 5 9 10 11 12 13 15, 15 को 5 से डिवाइड करते हैं 3. दिस इज द एवरेज ऑफ x. y का एवरेज निकालते हैं 6 11 20, 20 को डिवाइड करते हैं 5 से 4, तो 3 एवरेज आता है x का, 4 एवरेज आता है y का. तो 3,4 को एक बार प्लॉट करके देखो आप यहां. एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्लोप विल गो. ये फिक्स है कि स्लोप यहीं से जाएगा, चाहे आप इसको निकाल कर देख सकते हो. ठीक है, तो स्लोप यहां से जाने वाला है. तो यू नीड टू फाइंड आउट टू थिंग्स, वन इज अ स्लोप एंड वन इज अ इंटरसेप्ट. आगे चल के इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे जब बहुत सारे एक्स एक्सेस आ जाएंगे, मल्टीपल एक्स होंगे. अभी क्या एक एक्स है तो इंटरसेप्ट आप निकाल पा रहे हो. आगे चल के मल्टीपल एक्स होंगे, ग्राफ भी प्लॉट नहीं कर पाओगे. 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन का ग्राफ कैसा दिखता है? देखा है किसी ने? कभी नहीं देखा. 3D इज द मैक्सिमम दैट वी कैन चेक. हम 3D ग्राफ तक तो जा सकते हैं, 4D 5D हम नहीं जा सकते. तो अभी हमारे पास एक स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं. स्लोप फाइंड आउट करके मेरे को क्या फायदा मिल रहा है कि अब मैं चेक कर सकता हूं ना कि अगर x मेरा 6 है तो y क्या होगा, जो यहाँ लाई करेगा इस पॉइंट पर 6 के कोरेस्पॉन्डिंग, दैट इज गोइंग टू बी माय y. तो पॉइंट ये कि मशीन लर्निंग कैसे हुआ, ये तो मैथ्स है कि नहीं? आप लोग देखो भाई सब, ये तो मैथमेटिक्स है प्योर. तो हाउ इट इज मशीन लर्निंग. अब ये स्लोप हमने निकाला कैसे था? ये स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं. नाउ आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस स्लोप यू ट्राई टू फाइंड आउट देन इंटरसेप्ट. ये सब निकाल कर आप पूरा निकाल के रख लेते हो, तो इसमें मशीन लर्निंग तो कुछ भी नहीं है. सो एग्जैक्टली नहीं है मशीन लर्निंग. दिस इज नॉट मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग तब है जब आपको स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता. अब आप स्लोप निकाल कर दिखाओ.
Now train your machine to get a slope. कैसे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? लेट्स एज्यूम कि मशीन लर्निंग क्या करता है, अब समझते हैं। देखो, सिंपली वी हैव एक्स एंड वाई, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। लेकर चलते हैं इसको कि एक्स था आपका 1 2 3 4 एंड 5, वाई था आपका 2 4 5 4 5। एक्स का और वाई का हमारे पास एवरेज था 3 एंड 4। ठीक है, तो यू हैव एक्स एंड वाई अवेलेबल। अब सुपरवाइज लर्निंग वगैरह सब एक ही चीज से हमें इसी एग्जांपल से समझ आने वाला है। सुपरवाइज क्यों? क्योंकि वाई ऑलरेडी गिवन है, वी आर अवेलेबल विद द टारगेट। अगर ये नहीं होता, सिर्फ एक्स दे देते, तब हम बोलते कि हाँ दैट इज अनसुपरवाइज, बट नाउ वी हैव वाई। नाउ द पॉइंट इज कि मशीन लर्निंग कैसे काम करेगी। लेट अस एज्यूम वी आर नॉट अवेयर ऑफ स्लोप, हमें नहीं पता स्लोप क्या होता है, नहीं है फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का। अगर आपके पास स्लोप का, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, देन इट्स नॉट मशीन लर्निंग, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। तब तो मैथमेटिक्स है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है कि मशीन को इनिशियली ट्रेन करना शुरू करो कि जो आउटकम आपको फॉर्मूले से मिल रहा था ना, नाउ गेट द सेम आउटकम विदाउट दैट फॉर्मूला। मशीन को ट्रेन करना है हमने, वी हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग द मशीन। नाउ इफ आई से कि y इक्वल्स टू mx प्लस c लगा देते हैं। अब क्या रिजल्ट आने वाला है? 0, क्योंकि स्लोप भी 0 है और x की कुछ भी वैल्यू होगी। लेट्स से x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 0, तो क्या मिलेगा बदले में? 0 मिलेगा। नाउ इफ आई हैव 0, दैट इज माय प्रेडिक्शन, 0 इज माय प्रेडिक्शन। नाउ आई विल फाइंड आउट सेकंड थिंग दैट इज नोन एज अ लॉस। अब मुझे पता करना है कि मेरा जो एक्चुअल y है और मेरा जो y कैप है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर y2 है तो मेरा जो y कैप है वो कितना आ रहा है? 0। तो ऐसे करके यहां भी कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा, यहां पे भी, सब जगह पे कुछ ना कुछ आने वाला है। सो आई विल फाइंड आउट MSE, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। यानी कि एट द एंड क्या होना है, देखो हमें निकालना है लॉस, यानी कि एरर। लॉस बोलते हैं, एरर बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो इफ समवन आस्क मी, ये हमने निकाला ना इस लाइन में, स्लोप 0 है, स्लोप m है हमारा। नहीं, हमें नहीं पता ना स्लोप क्या है, स्टार्टिंग हमें 0 है। लेट अस अज्यूम कि हमें स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता। और सी को पुट किया, 0 आ गया, 0 डाल दिया इधर। नाउ द पॉइंट इज कि मुझे लॉस निकालना है, तो एरर निकालने का सिंपल क्या है कि आप y कैप माइनस y निकालोगे। यही तो एरर है एक्चुअली, देखा जाए तो y कैप माइनस y करे तो यू विल गेट दी एरर, बट माइट बी यू विल गेट नेगेटिव, हो सकता है नेगेटिव डेटा मिले। तो मैं स्क्वायर कर दूं इसका, और उसके बाद अगर मुझे एवरेज एरर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर। ये किसका फॉर्मूला है मेरे लिए? मीन स्क्वायर्ड एरर का, एमएस। तो ये जाकर मेरे को यहां लिख देना है कि फाइंड आउट वाई कैप माइनस वाई होल स्क्वायर, जो भी लॉस है वो निकालकर पूरा मेरे को निकालकर लेकर आना है। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। यहां तक मशीन लर्निंग अभी तक नहीं आया पिक्चर पे। नाउ कम्स द मशीन लर्निंग पार्ट। देखो मशीन लर्निंग खुद से कुछ भी नहीं देता है, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे अभी जो नेक्स्ट होने वाला है कि मशीन कैसे खुद को ट्रेन करने वाली है। तो अब हमें क्या चाहिए? वी नीड टू चेंज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तभी तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल, वापस आएंगे इस पर फिर। इफ आई से कि फॉर्मूला ये है सिंपल mx, ठीक है, mx का मतलब ये कि x 1 2 3 4 5 है। आई एम आस्किंग यू टू मल्टीप्लाई x विद समथिंग। मैं आपको बोल रहा हूं x की मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करो कि इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y कैप। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स तो आ सकता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? देखो सिंपल सा है ना कि अगर आपको प्रेडिक्शन फाइंड आउट करनी है बेस ऑफ एक्स वैल्यू, कि अगर एक्स कुछ भी है, मुझे कोई एम बता दो बस, एम क्या है, तो मतलब एम की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, यू विल गेट दी प्रेडिक्शन।
तो इट इज लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग, तो इतने टाइम्स इस चीज को करेंगे तो यू विल गेट आउटपुट। अब सोचो ऐसे मेरे पास x1 x2 x3 x4 देयर कुड बी n नंबर ऑफ x अवेलेबल, तो हर x को क्या चाहिए होगा, एक, हर x को एक m चाहिए होगा। तो इसीलिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है, मैंने m की जगह w लिख दिया क्योंकि जनरली हम यूज करते हैं w, दैट इज वेट, और इसका सम कर देते हैं। नाउ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ SVM, यही SVM की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीप लर्निंग, यही इक्वेशन किसकी है, डीप लर्निंग की भी है। समझ आ रहा है क्यों, बिकॉज रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि एक्स और वाई में रिलेशन कौन है, ये रिलेशन यही तो है, ये जो m निकल के आएगा दैट इज व्हाट द रिलेशन इज, कोफिशिएंट इज वेट इज, यानी कि x को एक वेट प्रोवाइड करो, पता चल जाएगा कि इतना आउटपुट आना है। इसको थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे को पता करना है कि एक प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, कि कितनी बॉल में कितने रन बनाता है, ठीक है, कल भी मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था। सो इफ आई आस्क यू कि मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है सचिन का, जिसमें लिखा हुआ है कि इतनी बॉल्स में सचिन ने इतने रन्स बनाए, ठीक है, कि वो 10 बॉल में 15 रन बनाता है, वो 15 बॉल में 25 रन बना देता है, वो 100 बॉल में 120 रन बनाता है, फिर वो 80 बॉल में 60 रन बनाता है। समझ आ रहा है पॉइंट मेरा यहाँ पर, फिर वो 90 बॉल्स में 75 रन है। तो ऐसा ही होगा, हर मैच में कंसिस्टेंसी अलग तरीके से चलती है। अब किसी ने मेरे को बोला कि सचिन 50 बॉल खेलेगा तो कितने रन बनाएगा, प्रॉब्लम सेम है, एक्स और वाई वाली प्रॉब्लम है अभी भी हमारे पास। नाउ आई एम सिंपली सेइंग कि भाई देखो ऐसा है कि व्हाट वी नीड टू डू, इफ दिस इज माय y एंड दिस इज माय x, तो मुझे x को कोई ना कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल इतना सा काम करना होता है मशीन लर्निंग के लिए। वो नंबर ही तो फाइंड आउट करना मशीन लर्निंग है, कि x की मल्टीप्लाई यानी कि 10 की मल्टीप्लाई, 15 की मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई, 80 की मल्टीप्लाई और 90 की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करो, वो नंबर सेम होगा, और लेट्स से वो नंबर 0.2 आता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग लेट्स से दैट नंबर इज 0.2। तो अब इसके बाद जो आंसर आएगा ना, दैट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, नॉट एग्जैक्टली तो नहीं होगा, वही तो मेरी प्रिडिक्शन है। ये नंबर निकालना ही मशीन लर्निंग है बस, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने y mx वाली बात की, अब मान लो सपोज मैं स्प्रिंग का केस लूं, किसका, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स हम निकालते हैं, तो f इज इक्वल टू kx। अगर मैं k की वैल्यू निकाल दूं तो अगर मुझे x पता है तो आई कैन फाइंड आउट दैट स्प्रिंग फोर्स। तो व्हाट वी डू इज कि हम नोन वेट लगाते हैं, जो मतलब जो स्टैंडर्ड 1 kg वेट डिफाइन किया हुआ है, हम उसको लगाते हैं, जो मतलब तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो द थिंग इज कि हम नोन से अननोन की तरफ मूव कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वी आर मूविंग फ्रॉम द नोन टू टू अननोन, अननोन। कुछ हमें नोन पैरामीटर्स है, बिल्कुल और उससे हम जो है वो ऑप्शंस निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली, और उस ऑप्शन को पुट करते हैं, तो जो भी हम x की वैल्यू डालेंगे हम y को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक बारे में क्लियर है। समझ आ रहा है आप सब लोगों को, ये सिंपल पॉइंट है कि वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली। ये मिल गया तो आप इसकी किसी, अब कोई भी बोले सचिन को कितने रन बनाने हैं, लेट्स से मैंने बोला वो 5 बॉल में कितने बनाएगा, मल्टीप्लाई विद दिस, वो 25 बॉल में कितनी बनाएगा। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर ये वैल्यू सेम है तो मशीन लर्निंग इज डेफिनेटली लाइक कि वो देखो वो पैटर्न के हिसाब से लर्न करता है। मशीन लर्निंग यही है कि आपने एक वैल्यू को फाइंड आउट किया, नाउ द पॉइंट इज कि ये वैल्यू बदलेगी कब, ठीक है, क्या ये वैल्यू मुझे चेंज करनी, इनिशियली वी डोंट चेंज वेट्स, हम वेट्स को कब ट्रेन करना शुरू करते हैं, जब डेटा बदलता है बहुत ज्यादा, तब हम लगता है कि हाँ वेट्स भी चेंज होने चाहिए, रीट्रेन होना चाहिए कि ये 0.2 की जगह हो सकता है 0.3 हो जाए अब, सो दैट्स वेयर वी रीट्रेन द मॉडल, ठीक है। विद टाइम हम लोगों को लर्न करना है उसको, ठीक है, कि हाँ कुछ चेंजेस हुए उसके बाद वो फिर से उसको लर्न करे, चेंजेस को लर्न करे वो एक्चुअली, ठीक है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है मैम का कि हाँ जी ये चीज तो हर बार कांस्टेंट नहीं रहेगी, 0.2 तो नहीं रहेगा हमेशा, लेकिन हाँ ये ऐसा भी नहीं है कि डेली बदल रहा है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हाँ डेटा मेरा बहुत चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली इट शुड चेंज, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें वापस आते हैं, जब
यहाँ पर नाउ अगर मॉडल चेंज हो भी गया सपोज, तो मैंने ये जो लीस्ट डेविएशन मेथड से अगर मैंने मॉडल को निकाल दिया, तो मैं उसको फिर वो कर सकता हूँ, मतलब लीस्ट मेथड से क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स से जो निकालते हैं। हाँ, मतलब कोफिशिएंट्स निकालने एट द एंड। ms plus c है, तो हम मैं सिग्मा y इक्वल टू m डॉट सिग्मा x प्लस सिग्मा xy या जो भी वो है, तो जो उसमें है, तो मुझे दो इक्वेशन है, अगर मुझे दो कोएफिशिएंट है तो मैं दो इक्वेशन दूंगा, तीन कोएफिशिएंट है तो तीन इक्वेशन दूंगा। बिल्कुल द थिंग इज कि वंस अगर आपको डेविएशन मिल गया, आपको स्लोप मिल गया, वो जो स्लोप है उसी की बात कर रहे हैं। आपको एक y नोन है और एक आप y आपने जो प्रेडिक्टेड उससे निकाल दिया, उससे है, अब उससे आप डेविएशन निकालो, डेविएशन लेकर आप इससे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका ना एक लाइव एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, तो उसके बाद थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि विद टाइम कैसे लर्न करेगा चीजें। देखो, अब यहां तक हम आ जाते हैं कि मैथमेटिकली यहां तक समझ आता है कि मशीन कैसे ट्रेन होगी, लॉस निकल के आ गया हमारे पास। व्हाट शुड बी दी नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि लॉस अभी आएगा बहुत ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? लॉस ज्यादा क्यों आने वाला है? ना तो स्लोप पता है ना इंटरसेप्ट पता है, यानी कि जिस चीज से मल्टीप्लाई करनी है वो तो हमने ऐसी उल्टा सीधा कुछ भी रख दिया है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक ग्राफ लेते हैं और इस ग्राफ पर जाकर अपना एरर डाल देते हैं कि ये एरर है, ये लॉस है। ऑब्जेक्टिव क्या है मशीन लर्निंग का? टू मिनिमाइज दी लॉस, मिनिमाइज दी एरर एंड इंप्रोवाइज दी एक्यूरेसी। तो पॉइंट इज कि मुझे इसको लॉस को नीचे लेकर आना है, मुझे लॉस को क्या करना है? नीचे लेकर आना है। स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx भी तो होता है कि नहीं? ये बात मुझे मशीन लर्निंग के टाइम पर समझ आई कि स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx क्यों होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब हम पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट तो रट लेते हैं, तो इतना सोचते नहीं है कि हाँ कुछ काम आएगा नहीं आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो हर पॉइंट के साथ चेंज होगा। तो आप जो है वो पर्टिकुलर एक किसी इंस्टेंट पे निकालोगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे। तो अब पॉइंट ये है कि स्लोप dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है आपको। अब डिफरेंशिएट करना किसको है? अब ये देखना है हमें कि इस फॉर्मूले में चलते हैं। ये बात समझ आ गई डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? ये जरूरी है समझना, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग सब लोगों के लिए ना ऐसा चलता है कि हम बोलते हैं कि मशीन लर्निंग के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन कितना? इतना आना चाहिए। मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड नाउ डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो आप लगाते हो, अगर आपने एक टर्म सुना है ग्रेडियंट डिसेंट, मशीन लर्निंग में एक टर्म यूज किया जाता है ना ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट ही तो मशीन लर्निंग है, बाकी सब तो मैथमेटिक्स चल ही रहा है। तो ग्रेडियंट डिसेंट निकालना मतलब यू आर फाइंडिंग आउट द स्लोप विदाउट नॉलेज ऑफ द इनिशियल स्लोप, जो भी था हमें नहीं पता, इनिशियल नॉलेज नहीं थी स्लोप की, इंटरसेप्ट की। विद अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोप नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसीलिए लोकल मिनिमा ऑप्टिमम निकालने के लिए सब चीजें की जाती है। तो वी फाइंड आउट द स्लोप यूजिंग dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा जो लॉस का फॉर्मूला है उसको ऐसे लिखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे होगा? 1/n समीशन। अब y कैप क्या होता है हमारा? mx प्लस सी। अच्छा, अब इसको अगर मैं मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में लिखूं तो वहां पर m और c यूज नहीं किया जाता, वहां थीटा यूज किया जाता है। ठीक है, बात एक ही है, थीटा लगा दो, m c कुछ भी लगा दो। तो जनरली वी यूज टू रिप्रेजेंट विद द थीटा। सो हमने लिख दिया थीटा नॉट x प्लस थीटा 1, ये हो गया आपका mx प्लस सी माइनस y, और ये होल स्क्वायर। समझ आता है? ये भी सिंपल है ना, अभी भी वही है, mx प्लस सी ही लिखा हुआ है। So you have to differentiate this particular equation with respect to theta naught and with respect to theta 1. तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार थीटा 1 के लिए, एक बार थीटा नोट के लिए। तो हम जाकर ऐसा लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा नॉट। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें हम लोग लगा दे सबसे पहले पावर रूल। पावर रूल लगा देंगे तो 2/n हो जाएगा समीशन, और फिर ये आपका थीटा नॉट प्लस
माइनस वाई। अब अंदर जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा नॉट कर रहे हैं अभी हम, तो क्या बचेगा x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इन मशीन लर्निंग। ये फॉर्मूला किसका है, स्लोप का है। अब dy बाई डी थीटा वन करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, तो इस बार आपको मिल जाएगा 2/n समीशन, क्योंकि स्टार्टिंग का तो सेम ही होगा, थीटा नॉट एक्स प्लस थीटा वन माइनस वाई। अब क्योंकि हमारा जो थीटा वन है वो कांस्टेंट है, किसी के साथ भी नहीं है, तो एट द एंड क्या बचेगा। ये फॉर्मूला मेरा किसका है, इंटरसेप्ट का है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। इसके बाद सिर्फ दो लाइन का, और एक्चुअली जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आई विल यूज द सेम थिंग इन पाइथन टू ट्रेन द मशीन। एग्जैक्टली यही मैं पाइथन में भी लिखने वाला हूं जब मैं इसको इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको। नाउ द फाइनल थिंग इज we have to update our slope and intercept using these। तो क्या करना है, लेट्स से स्लोप अपडेट करना है मुझे जाकर अपना, तो आई विल राइट हियर स्लोप इज इक्वल्स टू प्रीवियस स्लोप माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप यानी कि ये मल्टीप्लाई विद, मतलब ये एक्चुअली हो तो गया इतना, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा काम और किया जाता है कि मल्टीप्लाइड विद सम अल्फा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग रेट। इट इज नोन एज लर्निंग रेट। अब ये अल्फा एक कांस्टेंट रहता है, हाँ, अब अल्फा क्या हमारा एक कांस्टेंट है, लर्निंग रेट 0 to 1 कुछ भी रख लेते हैं, चेंज कर करके देख सकते हैं, तो जनरली 0.01 0.001 डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है डेटा टू डेटा, और कितना लॉस किस अल्फा से नीचे जा सकता है। तो उसको यहाँ पे रखा ही क्यों गया है, पहली चीज तो ये आती है कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि जब ये स्लोप नीचे की तरफ जाएगा, आई नीड टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग देना है कि कितनी तेज उसको जाना है पहली चीज, और किस डायरेक्शन में जाना है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, अगर आप लर्निंग रेट यूज नहीं करोगे तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, और जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही जाए, ठीक है। तो वी नीड टू गिव इट एज अ कांस्टेंट, और इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद द अल्फा। I hope it makes sense till here. This is what gradient descent is, and this is what machine learning is. अब ना तो स्लोप पता है ना इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट को भी अपडेट कर देंगे इसी तरीके से। नाउ डू दिस अंटिल यू मिनिमाइज द लॉस। कितना कोड रिपीट करना है, यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ आइट्रेशंस की एक लूप लगानी है। अब पता नहीं ना कितनी आइट्रेशंस में मिनिमाइज होगा, डेटा अच्छा है या डेटा खराब है, तो हो सकता है 100 इपॉक्स में खत्म हो जाए, यानी कि एक लूप चलानी है 100 की। तो अगर मैं एक 100 इपॉक्स का एक लूप लगाता हूं, तो उसमें अगर मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाता है, सो दैट वर्क्स फॉर मी। अब आ गया सब कुछ, ये सारे टर्म समझ आ गए आप लोगों को। इससे बेटर है अगर हम ये लगाने से बजाय अगर दो आइटरेटिव वैल्यू को कंपेयर करने और एक उसका वैल्यू बता दें कि ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। हाँ, दैट इज ऑल्सो अनदर अप्रोच कि एक वाइल लूप लगाया जाता है, दोनों अप्रोच यूज की जाती है। वाइल लूप में क्या करते हैं, उसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए फॉर लूप से शुरुआत की जाती है। लेट्स से आपने अज्यूम कर लिया कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को मिनिमम 0.05 तक लॉस चाहिए, लेकिन मेरा एल्गोरिदम जा ही नहीं पा रहा 0.05 तक, तो वाइल लूप में ही अटका रहेगा। तो इसलिए हम पहले फॉर लूप लगाकर टेस्ट करके पता चल जाता है कि हाँ जी कितना नीचे जा रहा है। अदरवाइज वाइल लूप लगा के कंडीशन लगा दी कि भाई जब तक 0.05 ना हो जाए लॉस, लूप चलाते रहो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ मशीन एक्चुअली लर्न्स। ये है मशीन का लर्न करने का तरीका। हाँ जी बिल्कुल, वी आर अचीविंग द ग्लोबल मिनिमा, कि एक मिनिमम एरर आ जाए, मिनिमाइज हो जाए हमारी एरर, क्योंकि एरर जितना मिनिमम होगा आपकी प्रेडिक्शन उतनी एक्यूरेट होगी, इसलिए हम लोग को ये अचीव करना है। कहां पर, ये dy by d थीटा नॉट,
हाँ हाँ हाँ, दो अलग अलग पैरामीटर है। आगे चल के क्या है, एक ही रह जाएगा, बस स्लोप रह जाएगा, इंटरसेप्ट हट जाएगा। सॉरी, किसको? नहीं नहीं, क्या क्या क्या? ऐसे हम ये dy by dt लॉट, हाँ तो मैं दैट इज इक्वल टू 0 का। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली हाँ, वो बात मैं समझ गया आपकी। हम बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ राइट में इक्वल्स में नहीं जाएगा, लेफ्ट में मेरा जो स्लोप वेरिएबल या कोई ग्रेडियंट स्लोप नाम का वेरिएबल रहेगा, बस उस वेरिएबल के अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है, ये ग्रेडियंट की कोई वैल्यू मिलने वाली है। ये मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ रिटर्न करेगा ना मुझे, जो ये रिटर्न करेगा वो मेरे वेरिएबल में, उसकी मल्टीप्लाई में अल्फा से करने वाला है। इसके राइट में कुछ इक्वल्स में नहीं रहेगा। dy by dt लॉट इज 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं, नथिंग इज हाँ उसको हाँ मिनिमाइज करते हैं तो हम इक्वल टू 0 करते हैं, हाँ तो ठीक वो है। इक्वेशन बन जाती है। हाँ लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना, इक्वल्स टू 0 नहीं करना। ठीक, समझ आया आप लोगों को मैथमेटिक्स क्या है इसका? क्लियर? तो नाउ वी नो दिस इज हाउ एक्चुअली मशीन लर्न्स, इस तरीके से मशीन सीखती है चीजें। अब देखो ये एक साइड है मैथमेटिक्स वाली, अब हम इसके ना कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली, लाइव एप्लीकेशंस दिखाता हूं मैं आपको कुछ। एक मैंने पहले भी एप्लीकेशन शायद आप लोगों को दिखाई होगी, क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रॉ क्या है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। तो क्विक ड्रॉ क्या है, डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन है, गूगल ने बनाई है। ये आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ठीक है? तो इट आस्क यू टू ड्रॉ समथिंग इन अंडर 20 सेकेंड्स, और जो कुछ भी आप ड्रॉ करते जाओगे ये बताता जाएगा कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। इट विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर ड्रॉइंग। और अगर आपने वो सही चीज ड्रॉ कर ली 20 सेकेंड में, तो इट विल से कि हाँ जी आप सक्सेसफुली ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है? अब सोचो क्या होगा, पहले एक रैंडम एग्जांपल बनाते हैं। लेट्स से मैं कुछ भी रैंडम ड्रॉ करने वाला हूं अभी, लेकिन ये इसको लेगा नहीं, तो यहीं से ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। सपोज आपने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना शुरू किया, यू विल स्टार्ट टू लुक एट दिस थिंग, कि बताना शुरू कर देगा कि क्या नजर आ रहा है, देखो इसको। ठीक है, मैं ऐसी रैंडम, Sorry, I couldn't guess it. ठीक है, तो गेस नहीं कर पाया, दोबारा कुछ और बनाते हैं। ठीक, I तो see circle आई एम सिंपली ड्रॉइंग रैंडम थिंग्स, or ball or square ठीक or है? bottle cap. I see person. समझ आ रहा है आप लोगों को ये? I see face or parachute or follow. अब ये Or लाइब्रेरी से necklace. नहीं कर रहा, इसके साथ यही तो है। Sorry, ये I क्या कर couldn't रहा guess है, it. ये मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ड्रॉ नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो मैं बताता हूँ क्या कर रहा है ये। इसके पास ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो लोगों ने बनाई है, ठीक है? जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग 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 ड्राइंग की हुई है। ये एंड में दिखाएगा। अभी ये बोल रहा है पाइनएप्पल बनाना, तो जो भी आप ड्रॉ करोगे तो ये I see आपको circle बताता जाएगा कि भाई आप or potato. कितना सही ड्रॉ कर रहे हो। Oh, I know. It's pineapple. अब मैंने पाइनएप्पल जैसा बनाया, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, बना दिया, उसने पहचान ली कि इट्स अ पाइनएप्पल। समझ आ रहा है? एंड में क्या करेंगे, इसकी सारी ड्राइंग्स ओपन करके देखेंगे, तो जितने भी लोग ड्राइंग करते हैं, कि उन सबसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है कि किसके जैसी आपकी पिक्चर ज्यादा मिलती जुलती है, वैसा प्रिडिक्शन आपको बताता रहता है। पैरेट क्या मैम? हाँ 5 या 6 बोलता है बनाने। पैरेट बनाना देखो मेरे को नहीं आता, ठीक है? I see ड्राइंग मेरी green बहुत ही bean ज्यादा खराब है, मैं or ट्राई भी नहीं feather. करूंगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। Sorry, नहीं क्या है ये? I couldn't guess it. सेलो, सेलो क्या होता है? क्या होता है सेलो, किसी को आइडिया? सेलो पेन नहीं समझ आता, सेलो, सेलो शायद बजाने वाला होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो। Sorry, I couldn't guess it. टेबल तो मैं बना ही दूंगा। I see line or bench. Oh, I know. It's table. हमें बताया ना बजाने का होता है ना कुछ, ठीक है? अच्छा, तो अभी क्या है, जैसे हम लोगों ने 6 ड्राइंग की,
तो ये आपको बताना शुरू करता है कि आपने कितनी सही कितनी गलत बनाई। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें देखना है ना कि ये सेलो क्या होता है, इस पर चलते हैं। अब खैर इसने कुछ बताया ही नहीं, तो दिस इज व्हाट सेलो इज। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो हमने सही बनाया उस पर चलते हैं। जैसे पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल है, अभी किस किस के साथ देखो कितना मैच कर रहा है। ये भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है जो ये बता रहा है ना कि किसके साथ कितना मैच कर रहा है, क्लोजेस्ट मैच। फिर ये बता रहे हैं लोगों ने पाइनएप्पल कैसा कैसा बनाया हुआ है। देखो मैंने सबसे आसान बनाया है। ठीक है, अब लेट्स से इसके पास अगर ये वाली इमेज नहीं है तो ये इसको भी रख लेगा, नेक्स्ट टाइम कोई इसकी जैसा बनाएगा तो इसको भी चेक करेगा। फिर आई होप समझ आया आप लोगों को ये। तो सोचो आपने एप्लीकेशन ये देखी कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे समझ आ रहा है आपको पीछे क्या चल रहा है, कि हाँ एक मैथमेटिक्स लगी है पीछे जो ट्रेन करती है पहले डेटा को, ट्रेन करने के बाद यू गेट द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स मिलने के बाद फिर वो प्रेडिक्शन वाली चीज शुरू होती है। लेकिन सर किसी ने बनाया होगा तो साथ में ये तो लिखो कि पाइनएप्पल है, मतलब उसको कैसे पता चला कि दैट इज पाइनएप्पल? हाँ इनिशियली गूगल ने डेटा रखा होगा अपने पास इनिशियली। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइंग्स का ही रखा होगा एक्चुअली, ओरिजिनल भी नहीं, ड्राइंग्स रखी होंगी, ड्राइंग्स के साथ कंपेयर किया होगा। देखो आज की रेट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी क्या है, ये तो पीछे आप इसमें जाकर देखोगे ना, मिलियन बिलियन इमेजेस यूज करता है। देखो जरा, बोल रहा है ना डेटा टू सी 50 मिलियन ड्राइंग्स मेड बाय अदर। तो इतनी इमेजेस है, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए बोलेगा कंपेयर करके आ जाएगा। आज के टाइम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोगों के पास भी आती है, और उसका सॉल्यूशन आ चुका है एक्चुअली, आपने सुना भी होगा। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ दो इमेज है, ये सबसे ज्यादा चलता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन में, बैंक्स वगैरह में, एयरपोर्ट पर, आपके फेस रिकॉग्निशन में। तो आपकी दो ही फोटो है मेरे पास और मुझे फेस रिकॉग्निशन बनाना है, कैसे बनेगा? दो इमेज के साथ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सोचो आए किसी के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम या नहीं। मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है वो। उसमें क्या करना है, उन लोगों को क्रिमिनल्स का इमेजेस का डेटा है उनके पास, और हर क्रिमिनल की 8-10 इमेजेस हैं बस, वो भी उल्टी सीधी है, अच्छी सी नहीं है। अब वो चाहते हैं कि कल को उन्होंने किसी क्रिमिनल को पकड़ा या सीसीटीवी में कोई कैप्चर होता है, तो दे वांट टू मैच, अपने डेटाबेस में मैच करना चाहते हैं किसके साथ कितनी आई, नोज, लिप्स, ईयर कितने मैच करते हैं। अब गैन क्या करेगा, इमेज जनरेट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। अब वो रिकंस्ट्रक्ट करने की भी जगह हमारे पास एक मॉडल है जो सिर्फ दो इमेज को कंपेयर करना जानता है। एक सियामेस नाम का मॉडल है, नया मॉडल है काफी, 2021 में शायद ये आया था। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क सीएमएस। ठीक है, तो फ्यू शॉट लर्निंग एक टर्म होता है, या मेटा लर्निंग अगर आपने सुना है, उसके अंदर वन वे एंड शॉर्ट लर्निंग्स होती है हमारे पास, कि अगर आप दो इमेजेस या तीन इमेजेस को कंपेयर करके भी रिजल्ट निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। सो जो आपके पास सिर्फ दो इमेजेस हैं एंड देन इट विल गिव यू द रिजल्ट्स कि किससे कितना मैच करता है। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम, क्योंकि बहुत कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम आती है डेटा के ना होने की, कि डेटा बहुत कम है तो उसके ऊपर सीएमएस जैसे नेटवर्क्स को यूज किया जाता है, और ये दो इमेजेस कंपेयर करता है एक बारी में, बस सिर्फ दो इमेजेस। अब एक्चुअली इसकी क्या ना है, तो ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क ही, इसने क्या किया, इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्टिव लॉस होता है, ट्रिपलेट लॉस वगैरह, लॉस निकालने का इसका तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। इसके इनपुट में दो इमेज जाती है, दो मॉडल बनाता है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, जस्ट अ सेकंड में चेक कर लूं किधर है। ठीक है, ये देखो इसका इंप्लीमेंटेशन है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये एमनेस्ट का सिंपल हैंड रिटन इमेजेस वाला डेटा है, बहुत सिंपल सा डेटा है आपका। अब इसमें करता क्या है, इसका तरीका क्या है काम करने का, कहते हैं देखो
पेयर बनाता है, ये दो दो इमेजेस के ये पेयर बनाता चला जाता है, और हर पेयर के सामने जो लेबल होता है वो होता है 1 या 0, यानी कि इस पेयर के अंदर जो दो इमेजेस हैं वो दोनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है, यानी कि वो सेम है या अलग अलग है। ठीक है, ये पेयर बनाया जाता है सबसे पहले। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, पेयर है ये। तो पेयर के अंदर दो इमेजेस हैं 7 7, और इनकी जो क्लास है वो है 1। इसका मतलब दे आर सेम। अगर इस पेयर में दो अलग इमेजेस होंगी तो इनकी क्लास क्या बना देगा, 0। तो ऐसे करके देयर आर लॉट ऑफ पेयर्स अवेलेबल। तो पेयर बनाता है बस। हम उस पेयर के ऊपर दो मॉडल बनाते हैं। एक हमारा नॉर्मल मॉडल होगा, आप पेयर तो 2 बार मॉडल बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वी ट्राई टू बिल्ड मॉडल 2 टाइम्स। उसके बाद हम लोग अपने इसकी जो लॉस फंक्शन है वो कॉन्ट्रास्टिव लॉस या ट्रिपलेट लॉस यूज करता है। तो मॉडल ना कुछ ऐसा नजर आएगा आपको इसका। देख रहे हो आपकी दो मेरे पास अलग अलग इनपुट्स है, कंबाइन करके फिर मेरे पास एक डीप लर्निंग का मॉडल बनता है आगे। और फिर बस इतना मॉडल बनाकर मुझे ट्रेन करना है, एंड यू विल गेट रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। मैं इसके आउटकम दिखाता हूं आपको सीधा, कि अगर मैंने दो इमेजेस पास की 5 एंड 4, तो वो बताएगा कि अब इतना मेरे पास निकल के आ रहा है ना 1.0 समथिंग, तो हर किसी का मेरे को एक स्कोर निकाल के देना शुरू कर सकता है। सो इसलिए दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर नेटवर्क वी हैव। इसकी बहुत डिटेलिंग है, अगर आप कभी पढ़ना चाहते हो सीएमएस नेटवर्क, या सर्च कर सकते हो मेटा लर्निंग क्या होती है। ठीक है, ये 1.0 था, फाइनल वैल्यूज इज गुड और बैड? अब हमने जो ट्रेन किया था, ट्रेन करते वक्त जो हमने पास किया, हमने बोला कि अगर 1 है तो मैच करता है एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट 0 है तो मतलब दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब 1 पॉइंट समथिंग है तो मतलब कुछ परसेंट मैच कर रहा है। ठीक है, अब उसमें कितना मैच कर रहा है कितना कम मैच कर रहा है वो उस पर वेरी करेगा। ठीक है, हाँ नहीं ऑब्वियसली, तो अगर वो देखो मैच नहीं करेगा तो वो 0 या 1 एग्जैक्ट नहीं देगा, वो आपको एक वैल्यू देगा बिटवीन समथिंग, कितना मैच कर रहा है कितना नहीं। ठीक है, और देखो मैच करने का मतलब भी क्या है, वो तो पिक्सल्स मैच करने हैं उसने तो ना, कि भाई मेरे पास ये 7 ये वाले पिक्सल्स कवर करता है, यहाँ पे ये इतने पिक्सल्स कवर करता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं जैसे 5 और 4 में जाकर अगर हम देखें तो ना, जैसे ये 5 इतने पिक्सल्स पे जा रहा है तो 4 इतने पिक्सल्स पे, जहां जहां जितने पिक्सल्स पे वो मैच करा के दे रहा है वैसा कुछ आपको बताना शुरू करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉपुलर नेटवर्क जो आप लोग अपनी रिसर्च वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो आगे कभी। ऑल राइट, वापस आते हैं इसके बाद। तो हम लोग बात कर रहे थे देखो कि अब मशीन लर्निंग ये है, दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू इंप्लीमेंट एज वेल। यही चीज हम लोगों को पाइथन से भी इंप्लीमेंट करनी है ऑन सम डेटा, किसी भी एक डेटा पर ये जाकर इंप्लीमेंट करके हमें देखना है। ठीक है, ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो एक डेटा ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग। अभी डेटा मैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं, कोई मेरे पास एक डेटा होगा, बाद में थोड़ा और बेटर डेटा ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट का लेना है आपको डेटा, आपको कोई कोविड का डेटा लेना है, कोई भी रियलिस्टिक डेटा लेना है, मैं भी रियलिस्टिक डेटा पर ही लगाऊंगा इसमें। क्या मैं गिट पर डाल देता हूँ, जिसको करना है साथ साथ कर सकता है। So there is a data of head and brain. उसी को हम लोग यहाँ पर भी अपलोड कर देते हैं अपना। ऑलराइट, तो देखो वैसे तो मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करना 5 लाइन का काम है पाइथन में, क्योंकि देर इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, sklearn लाइब्रेरी आती है, उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन नाम का पैक मेथड है। कोई भी मॉडल लगाना है 5 मिनट में लग जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले जो सीखा है ना वो लगाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा मैम मैंने।
हाँ वो अभी दिखाएंगे। तो पहले रिक्वायर्ड पैकेजेस पर आते हैं। 3 पैकेज की जरूरत है, एक तो पेंडास चाहिए, एक नंपाई चाहिए और एक मैटप्लॉटलिब चाहिए। So we need only these 3 packages. All right. Pandas डेटा रीड करने के लिए चाहिए, numpy कंप्यूटेशंस के लिए चाहिए, न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा को रीड करना है, तो pd.read_csv, फाइल का नाम है हेडब्रेन। तो df.shape देखते हैं सबसे पहले और df.head देखते हैं क्या है। तो शेप से पता चलता है 237 रोज है और 4 कॉलम है। हेड में जाकर पता चलेगा फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है। सो दीज आर दी फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, जेंडर, एज, हेड साइज एंड ब्रेन वेट। तो इसमें x और y अपना अंडरस्टैंड कर लेते हैं। x ले लेते हैं हेड साइज, y ले लेते हैं ब्रेन वेट। एक x एक y बस। ओके तो x वेरिएबल में डाल देते हैं हम df हेड साइज डॉट वैल्यूज और y वेरिएबल में डाल देते हैं df ब्रेन वेट इन ग्राम्स डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यूज इसलिए लिख रहे हैं ताकि बदले में नंपाई का एरे मिले। अगर डॉट वैल्यूज नहीं लिखते हैं तो सीरीज मिलती है। ओके सो नाउ वी हैव x एंड y। फ्लो बना हुआ है बस 5 मिनट। नहीं सर मेरी बात ये है कि दूसरे की स्पीकर कोई बात नहीं सर, कर लेंगे एटलीस्ट, कोई बात नहीं। हमारे कहने से ये इशू इसलिए चलो चलो बस 2 मिनट 2 मिनट। हाँ जी, जैसे कल सीरीज बनाई थी ना, पेंडास के अंदर सीरीज होता है और डेटा फ्रेम होता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें नंपाई का एरे चाहिए। तो डॉट वैल्यूज लिख के एरे मिल जाता है। ऑल राइट, तो नाउ वंस यू हैव एरे, पहले पता करते हैं एक्स एंड वाई रिलेटेड है भी या नहीं। तो plt डॉट स्कैटर x, y और plt डॉट शो करके देख लेते हैं। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं पहले कि साफ साफ नजर आता है ना भाई कि स्कैटर प्लॉट अगर ऐसा दिखता है तो इट मींस x और y आर रिलेटेड, कि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके तो अभी तक हमने पैकेजेस इंपोर्ट किए, पहले फाइल को रीड किया, CSV को, शेप चेक की, हेड चेक किया और फिर उसके बाद प्लॉट किया, x एंड y को निकाला। तो मेरे को खुद ही लिखना पड़ेगा। ये तो मैं मतलब ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, शेप वगैरह से तो पता चल ही रहा है क्या हो रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो आफ्टर दिस अभी हम लोगों के पास एक्स एंड वाई आ गया है। अभी इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।